So our today's topic is on non-cooperation movement spread in other parts of the country. First of all, movement in towns. तो इसमें आपको मद्रास याद रखना है. मद्रास एक ऐसी प्रेसिडेंसी थी अंडर ब्रिटिश जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड ही नहीं हुई. Why non-cooperation movement didn't spread in Madras? Because in Madras, majority of the people were non-Brahmins. And non-Brahmins, they were always on the view that Congress gave importance to Brahmins. High positions in the Congress were given to Brahmins. Non-Brahmins wanted to remain with British. They were on the view that by remaining with British, they would take part in elections and they would come in power. So that's why they didn't join this movement. Madras presidency ko yaad rakhna. But in towns, people were active participants. They participated in this movement and they boycotted British goods. They boycotted British institutions. Students, teachers, doctors left the British institutions. People started buying mill-made khadi. They boycotted mill-made clothes and they surrendered the titles. Liquor shops were picked up. But after a few months, this movement slowed down because people had to join British institutions again as there were no Indian institutions. And people had to buy mill-made clothes again because khadi was expensive. And under British, Indians were very poor, so they could not afford khadi. So they had to buy mill-made clothes again. So this movement got slowed down in towns. Next is movement in countryside. तो मेन स्ट्रेस इसमें आपने देनी है. सबसे पहले तो यहाँ पे मेन जो नाम याद रखना है दैट इज बाबा रामचंद्र सन्यासी. तो यहाँ पे फॉर द पीपल ऑफ कंट्री साइड स्वराज मीन. कंट्री साइड के जो लोग थे ना, दे उनकी जो भी लड़ाई थी ना वो ब्रिटिश के साथ नहीं थी. दे हैड नो फाइट विद ब्रिटिश. फॉर देम स्वराज मीन टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ताल्लुकदार्स. People of countryside had to pay revenue to talukdars and they wanted to get freedom from talukdars. Here, movement was led by Baba Ramchandra Sannyasi. And from the Congress, Pandit Nehru visited Awadh. And with Baba Ramchandra Sannyasi, Pandit Jawaharlal Nehru and Baba Ramchandra Sannyasi both set up Awadh Kisan Sabha. But here people turned violent. They attacked the houses of talukdars. So कांग्रेस स्टॉप गिविंग इट्स कॉपरेशन एंड मूवमेंट स्लो डाउन हो गया क्योंकि कांग्रेस किसमें बिलीव नहीं करती थी, वायलेंस में. मेन आप कहो कि बेस ऑफ दिस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बेस क्या था? नॉन वायलेंस. गांधी जी डिड नॉट बिलीव इन वायलेंस. तो नेक्स्ट इज मूवमेंट इन ट्राइबल एरियाज. यहाँ पे आप बताओगे फॉर द पीपल ऑफ ट्राइबल एरिया स्वराज मीन टू मूव फ्रीली इन to collect forest produce. For the people of tribal areas, Swaraj mean to collect forest produce. British did not allow Indian forest dwellers to collect forest produce. So here the movement was led by Alluri Sitaram Raju in the Goodend Hills of Andhra Pradesh. Movement was led by Alluri Sitaram Raju. Alluri was man with strange qualities. He said that he could survive even bullet shot, and Alluri was follower of Mahatma Gandhi. He encouraged people to wear khadi. Alluri did not believe in non-violence. He believed in violence. Alluri called him as the incarnation of God. So here people turned violent. Alluri turned violent. He attacked the police station and set it on fire. Alluri was captured by British and he was executed in 1924. Alluri was captured by British and Alluri was executed in 1924. Next is movement in plantation areas. For the people of plantation areas, Swaraj mean to move freely in plantation areas. And in those days, British did not allow Indians to move freely in plantation areas. They were enclosed there. People who worked in plantation areas, they were enclosed there. They were not allowed to meet their family members. Their living condition, working conditions were very poor.
Now these, in those days, rumors spread that Gandhi Raj is coming. Now everyone would want to go back his village, but British never allowed these people to go back their homes because in 1859 Inland Immigration Act was passed, and by this act Indians were not allowed to move freely in plantation areas. So British never allowed Indians to go back their homes. Whenever they tried, they were arrested or killed by the British. So this is about movement in plantation areas. Listen again how movement spread in different parts, movement in towns, movement in countryside, movement in tribal areas, movement in plantation areas. सबके लिए मेन आंसर मूवमेंट इन टाउन्स में मेन आंसर लेफ्ट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, बाइकॉटेड ब्रिटिश गुड्स, प्रमोटेड खादी, फिर वहाँ पे नहीं थे इंडियन इंस्टीट्यूशंस, पीपल हैड टू ज्वाइन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस अगेन. दिस इज द मेन आंसर. मूवमेंट इन कंट्री साइड मेन आंसर जो आपको अंडरलाइन करना है, दैट इज अबाउट फॉर द पीपल ऑफ कंट्री साइड स्वराज मीन टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ताल्लुकदार, नॉट फ्रॉम ब्रिटिश. यहाँ पे ताल्लुकदार वर्ड को अंडरलाइन करना है. एंड नेक्स्ट इज बाबा रामचंद्र सन्यासी. एंड देन अबाउट ओध किसान सभा, ये आपका हाईलाइट होना चाहिए. ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू विजिटेड अवध, सेट अप ओध किसान सभा. दीज आर द मेन आंसर्स. नेक्स्ट, इन मूवमेंट इन ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे गुडे मिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश. आपका मेन आंसर फॉर द पीपल ऑफ ट्राइबल एरिया स्वराज मीन टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो यहाँ पे लीडर का नेम अंडरलाइन होना चाहिए, अलूरी सीताराम राजू. फिर आपका ये आंसर अंडरलाइन होना चाहिए कि अलूरी वाज कैप्चर्ड, अलूरी प्रमोटेड खादी, encouraged people to wear khadi, was follower of महात्मा गांधी. फिर आप बताओ कि ही आप बताओ अटैक द पुलिस स्टेशन एंड सेट इट ऑन फायर. अलूरी वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड इन 1824. अंडरलाइन कर दो 1824, सॉरी 1924, 1924, 1924 को अंडरलाइन कर देना. ठीक है, तो इस वे से अगर आप मेन आंसर अंडरलाइन करते हो ना, दीज आर द मेन आंसर्स व्हिच यू हैव टू अंडरलाइन टू अट्रैक्ट द एग्जामिनर. इसमें अलूरी का नाम अंडरलाइन होना चाहिए, इसमें 1924 ईयर अंडरलाइन होना चाहिए. तो नेक्स्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अंडरलाइन कर सकते हो. नेक्स्ट इज मूवमेंट इन प्लांटेशन एरिया, 1859 वाला ईयर अंडरलाइन होना चाहिए, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट इंडियंस वर नॉट अलाउड टू गो बैक देयर होम्स. फिर र्यूमर अंडरलाइन कर दो कि र्यूमर स्प्रेड हुई थी गांधी राजस कमिंग. तो साथ में अंडरलाइन कर दो फॉर द पीपल ऑफ प्लांटेशन एरिया स्वराज मीन टू मूव फ्रीली इन प्लांटेशन एरिया. आप कोई भी ये मेन आंसर्स अंडरलाइन करते हो देन यू विल गेट फुल मार्क्स. आप एक हिसाब से एग्जामिनर को ट्रैक्ट करते हो मेन आंसर की तरफ, तो वो पूरे नंबर मिलते हैं ऐसे लिखने से. ठीक है, नेक्स्ट हियर वन वर्ड इज गिवन, पिकेट. बैन द एंट्री, अगर आप किसी जगह की एंट्री को, आप कहो कि आप किसी भी जगह की एंट्री को रोक देते हो, बंद कर देते हो किसी भी, आप जैसे ये है एंट्रेंस है, आप इस एंट्रेंस को ब्लॉक कर दो. ब्लॉक द एंट्री, किसी जगह की एंट्री को ब्लॉक करना. और उन दिनों लोग कहाँ की एंट्री को ब्लॉक करते थे? लिकर शॉप्स. पीपल ऑलवेज केप्ट अप लिकर शॉप्स. तो एक तो ये लर्न करना. ठीक, नेक्स्ट इज बेकार. बेकार में आपने ये बताना है बॉन्डेड लेबर जो होती है विदाउट पेमेंट, पीपल वर फोर्स्ड टू वर्क विदाउट एनी पेमेंट. फ्री लेबर, फ्री लेबर, लोगों से फ्री लेबर करवाते थे. ठीक है, नेक्स्ट इज पैराग्राफ. वेट, वन पैराग्राफ इज गिवन ऑन द साइड ऑफ दिस. यस, रायबरेली वाला, रायबरेली कह रही हो आप, ये वाला पैराग्राफ. On 6 January 1921, police in United Provinces fired at peasants near Raebareli. Jawaharlal Nehru wanted to go the place of firing, but was stopped by police. रायबरेली का बताया हुआ है यहाँ पे एक इंसिडेंट. पंडित नेहरू वहाँ पे जाना भी चाहते थे, बट पुलिस ने पंडित नेहरू को वहाँ पे जाने नहीं दिया. रायबरेली में क्या हुआ? 6 जनवरी 1921 पुलिस ने इन यूनाइटेड प्रोविंसेस फायर्ड एट पीजेंट्स, पुलिस ने पीजेंट्स पे फायरिंग की थी. पंडित नेहरू वांटेड टू गो देयर बट ही वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस. तो ये अगर आएगा तो आपको सोर्स में देंगे. यहाँ से अगर उन्होंने कुछ नहीं भी देंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम गायब कर देंगे या कुछ
सोर्स ऐसे बना देंगे, हु वांटेड टू गो टू यूनाइटेड प्रोविंसेस टू सी द पुअर कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स, कौन जाना चाहता था वहाँ पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सोर्स में पूछ सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पे चोरी चोरा इंसिडेंट इज गिवन हियर, ये देखो चोरी चोरा इंसिडेंट नॉट गिवन एज ए, आप कहो कि बुक में ये प्रॉपर वे से नहीं दिया हुआ, बट गिवन हियर चोरी चोरा इंसिडेंट, ये पिक दी हुई है चोरी चोरा की और साथ में इसी में उन्होंने इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट, जो बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे आफ्टर दिस आपका आ जाता है स्वराज पार्टी। चोरी चोरा इंसिडेंट 1922, स्वराज पार्टी के लिए भी आपको कौन सा ईयर लर्न करना है? 1922। 1922 फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय स्वराज? स्वराज मीन सेल्फ रूल, स्व अपना, राज रूल, स्वराज मीन सेल्फ रूल। तो आपने बताना स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1922। चोरी चोरा इंसिडेंट भी 1922, स्वराज पार्टी भी 1922। अंडर किसने बनाई? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1922 बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। क्यों बनी अब ये पार्टी? मीनिंग बताओ पहले तो स्वराज का। स्वराज मीन सेल्फ रूल। क्यों बनी? दिस पार्टी वाज फॉर्म्ड, क्यों बनी? व्हाई दिस पार्टी वाज फॉर्म? आप बताओ। सम ऑफ द कांग्रेस लीडर्स वर फेड अप विद द मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी। नो दे, अब वो क्या करना चाहते थे? वांटेड टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस। They were on the view that by taking part in elections, they would come in power and force British to introduce some reforms. So that's why they left Mahatma Gandhi. उन्होंने महात्मा गांधी को छोड़ दिया, but still some young leaders were with Mahatma Gandhi. कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। अब फादर जो है वो अगेंस्ट हो गए हैं, मोतीलाल नेहरू, बट पंडित नेहरू वाज स्टिल विद Mahatma Gandhi. Pandit Nehru was still with Mahatma Gandhi. Motilal Nehru was not in the favor of Mahatma Gandhi. Motilal Nehru and Chittaranjan Das formed Swaraj Party. In which year? C.R. Das in which year? 1922. Swaraj means self rule. बच्चे इंडिपेंडेंस लिखते हैं, सेल्फ रूल लिखना है। स्वराज मीन सेल्फ रूल, ठीक है। अब ये देखो इंडिपेंडेंस डे प्लेज 26 जनवरी 1930, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बन गया। पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को कौन सी प्लेज ली गई थी? विच प्लेज वाज टेकन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 26 क्या कहा था 26 जनवरी 1930 को? क्या होगा? दैट दे वुड freed India from British rule. Pandit Nehru pledged that 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day in the whole of India. यही कहा था ना उन्होंने। तो नेक्स्ट इसमें पहले तो इस पैराग्राफ में फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट स्वराज पार्टी है, सारा फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने अभी बोला वो स्वराज पार्टी है। अब नेक्स्ट में आ जाता आपका साइमन कमीशन, स्टैच्यूरी कमीशन। पेपर में स्टैच्यूरी कमीशन आए तब भी साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन वाज फॉर्म अंडर सर जॉन साइमन। अब मैं बोल रही हूँ स्टैच्यूरी कमीशन, स्टैच्यूरी कमीशन मीन साइमन कमीशन। तो ये कहाँ पे बना? इन 1927 दिस कमीशन वाज फॉर्म्ड इन इंग्लैंड बाय टोरी गवर्नमेंट, TORY। टोरी गवर्नमेंट ने 1927 में इस स्टैच्यूरी कमीशन को इंग्लैंड में बनाया था अंडर सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन के अंडर बना तो इसका नाम पड़ गया साइमन कमीशन। इट हैड 7 members and they all were British. This commission was formed to make some changes in Indian administration, and this commission came to India in 1928. And Indians, as there was no Indian representative in this commission, so Indians decided to boycott this commission. They decided to greet it with black flags and with the slogan Simon Go Back. This commission reached Lahore on 30th October 1928. 27 में टोरी गवर्नमेंट ने बनाया। दिस कमीशन रीच लाहौर ऑन 30th October 1928. Up till here, students?